Good afternoon, everyone. Welcome to this Facebook Live session by Gujarat Super Speciality Hospitals. Today, we are really happy on this first live where we'll be talking about recent advances in coronary angiography and angioplasty. Uh, to elaborate on this, we have with us Dr. Snehal Rangari. Dr. Snehal, welcome. Hello, hi. Viewers, I'd like to tell you, and I'm happy to tell you that Dr. Snehal comes with a wonderful experience of 7 years. He did his MBBS and his MD, and he did his DNB in cardiology. Welcome, doctor. We are glad to have you with us, and I hope that this live will help a lot of people to understand what is going on currently in angiography, in angioplasty. Dear viewers, I would also like to tell you that you can ask all your questions in the comment section after, after or even during the session. So, welcome everyone, and welcome, doctor, once again. So, to begin with, doctor, I would like to ask you what are the basic heart issues, heart problems that a person can have? And then, if you can also elaborate about what exactly is angiography and angioplasty. So friends, Namaskar. I am Dr. Snehal Rangari. I am a consultant adult and pediatric interventional cardiologist practicing at Gujarat Super Speciality Hospital. Today we'll be discussing about part of a heart disorder, like the major chunk of it, like which is having a major comorbidity and a higher burden about the coronary artery disease. Okay, so it is just a part of the heart diseases that are there. Heart diseases are classified into various types. It can be due to coronary artery disease. It can be valvular heart disease related to wall issues. It can be congenital heart disease that are by birth you have some congenital heart issues. Then there are some electrical issues of the heart that can be AV blocks or which require pacemakers or electrical abnormalities like ventricular tachycardia, atrial fibrillation. So coronary artery disease is a major health disorder, and as you know, it's a leading cause of morbidity and mortality in our country, not only in our country, the whole wide world. And definitely, we will be giving you some good topics. What recent advances, how the coronary practice has changed over the 10 years, how it has definitely helped us to give a good outcomes, good results, and a better life to have a proper life ahead. Yeah. So, doctor, so directly we get into the topic. Thank you for this little introduction to the several heart problems that we have. So, what exactly is angiography and angioplasty? When is it Uh, done? okay. So, friends, what is angiography and why is it done? That is the question. So, basically, who is to be done for coronary angiography is a test like we do ECG or 2D echo or your blood test reports. So, like that, coronary angiography is a test which is done under a X-ray machine in a cath lab and by a well-known by a cardiologist. So, who will be performing your coronary angiography. सो इट इज डन यूजुअली बाय अ हैंड और योर लेग एंड उसमें एक छोटी सुई के द्वारा फिर हम लोग एक वायर के थ्रू एक तार के थ्रू उसके ऊपर एक ट्यूब से हम लोग हार्ट में जाकर वहां पर डाई इंजेक्ट करके आपकी हार्ट की नसों की जांच करते हैं. तो ये हार्ट की नसों की जांच इस तरह से हमको इतना क्लियर आइडिया मिल जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कोरोनरी इश्यूज. ये जो एंजियोग्राफी हम करते हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड है. मतलब एक बार ये आपकी कर लिए जाए तो हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि कितने परसेंट ब्लॉकेज है और कितना सीरियस ब्लॉकेज है, जिसके बाद आपके कार्डियोलॉजिस्ट इसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं कि व्हाट हैज टू बी डन अहेड. सो इट इज जस्ट अ टेस्ट और ये टेस्ट हाथ या पैर में से एक सुई के द्वारा की जाती है. क्यों करते हैं इसे? जैसे अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कार्डियक सिम्टम्स है कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिलेटेड, तो ये टेस्ट आपको कार्डियोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन सजेस्ट करेंगे. तो जैसे आपको चलने फिरने में हार्ट में चेस्ट पेन होता है या दिक्कत होती है, चलने में सांस फूल जाती है, डे टू डे एक्टिविटीज आप नहीं कर पाते हो, आपको चक्कर आती है या वीकनेस महसूस करते हैं चलने फिरने में, आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, काफी सारे कोमॉर्बिडिटीज है, तो ये रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसमें बढ़ जाता है. तो दैट्स वाई अगर आपको सिम्टम्स है और आपको रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपके
जो फिजिशियन या डॉक्टर्स हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे आप एक टेस्ट करवा लीजिए, जैसे ट्रेडमिल करवा लीजिए, अगर वो पॉजिटिव आती है तो उसमें आपको वो लोग सजेस्ट करेंगे कि कोर्निया एंजियोग्राफी करवा लो, या आपके ईसीजी में बेसिक एब्नॉर्मलिटीज है, या आपकी ब्लड टेस्ट करवाते हैं जैसे ट्रोपोनिन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हमें कार्डियक, इट इज अ इंजुरी मार्कर, मतलब कार्डियक में अगर एंजाइम्स बढ़ जाए तो आपको आपके डॉक्टर कोर्निया एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। या तो कोई सीरियस इश्यू में जैसे आपको हार्ट अटैक आया हो तो उसमें आपको डायरेक्ट कोर्निया एंजियोग्राफी के लिए लिया जाएगा ताकि आपकी वो आर्टरी सॉल्व करा सके जो 100% ब्लॉक हो गई हो। अब ये कोर्निया एंजियोग्राफी हाथ या पैर की नस से की जाने वाली टेस्ट है और इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, लेस देन 1%। सो डॉक्टर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से इसे समझाया कि एंजियोग्राफी है क्या और ये क्यों किया जाता है। तो मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ कि हर मेडिकल एडवांसमेंट एक इवोल्यूशन होता है, तो ये पहले के कंपैरिजन में क्या अलग है एंजियोग्राफी में, इसमें एडवांसमेंट क्या है, अलग क्या है, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है? ओके, सो फ्रेंड्स, अभी जो कोर्निया एंजियोग्राफी हम करते हैं या उसमें जो एडवांसमेंट है, ये अपने मेन टॉपिक है आज का। तो कोर्निया एंजियोग्राफी में काफी एडवांसमेंट हुआ है। पहले के जमाने में आप अगर देखें तो फीमोरल अप्रोच, मतलब पैर से की जाने वाली प्रोसीजर ज्यादा होती थी। अभी रेडियल अप्रोच करते हैं, जो हाथ से हम लोग इसे करवा सकते हैं, जिसमें आपका रिकवरी टाइम जल्दी हो जाता है, आपको हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, एम्बुलेशन जल्दी हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस आर लेस। सो बिकॉज ऑफ द रिसेंट एडवांसमेंट टेक्निक्स, अभी आप देखेंगे तो रेडियल मतलब हाथ से ज्यादा प्रोसीजर्स होती हैं पहले के मुकाबले में, फीमोरल प्रोसीजर्स के मुकाबले में। बट ये वो आपके कार्डियोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं कि आपको रेडियल से जाना है या फीमोरल से जाना है। बट दिस इज डेफिनेटली एन एडवांसमेंट दैट रेडियल अप्रोच हैज बिकम मोर। फिर इसमें अभी रिसेंट एडवांसेस में आए हैं कि इंट्राकोर्नरी इमेजिंग आ गया है, कि आपकी हार्ट की नसों की अंदरूनी जांच की जाती है, आपकी हार्ट में कितना परसेंट और कितना क्रिटिकल, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट और भी एडवांस हो गया है। उस अंदरूनी जांच जो हम इमेजिंग यूज करते हैं, जो ओसीटी और आईवस बोलते हैं, जिसे एक अल्ट्रासाउंड या लाइट के द्वारा आपके कोरोनरी आर्टरी की अंदर की जांच की जाती है, जिससे एकदम एक्यूरेट ट्रीटमेंट, और उसके बाद जब हम स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं तो बहुत एक्यूरेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर एक रिसेंट एडवांसमेंट आया है एफएफआर, माने प्रेशर गाइडेड वायर। एक प्रेशर वायर होती है जो आपकी ब्लॉकेजेस अंदर हो, तो ये ब्लॉकेज आपको कितनी दिक्कत दे सकती है फ्यूचर में, ये भी हमको जानकारी मिल जाती है। तो दिस एडवांसमेंट हैज डेफिनेटली इंप्रूव्ड ओवर द पास्ट, एंड इसमें अच्छे रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म रिजल्ट डेफिनेटली बेटर है। और जिन पेशेंट्स को हम लोग पहले कोर्निया एंजियोप्लास्टी अभी अवॉइड कर सकते हैं ये एफएफआर टेस्ट के द्वारा। मान लो आपको प्रेशर से हम लोग जांच कर लेते हैं कि आपके प्रेशर्स बहुत ड्रॉप हो रहे हैं वो लीजन के अक्रॉस, तो इसमें स्टेंटिंग की जरूरत है। अगर उसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता तो इसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है कि हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं इन पेशेंट्स को आगे एंजियोप्लास्टी या बाईपास करवाना है, इन पेशेंट्स को नहीं करवाना है। फिर उसमें हम आते हैं पहले के इसमें, जब हम अभी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स भी बढ़ गए हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं जो पहले हम लोग नहीं करवाते थे। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स जो पहले नहीं हो पाती थी, पहले हम बाईपास सर्जरी को पेशेंट भेज देते थे, बट अभी बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन दैट हैव कम अप, कि हम लोग रोटा एब्लेशन या डीबल्किंग स्ट्रेटेजीज, अगर बहुत टफ लीजन्स है तो उसको भी हम लोग ट्रीट करवा सकते हैं। बहुत टॉर्चुअस आर्टरी है, यानी बहुत टेढ़ी मेढ़ी आर्टरी है, तो उसमें भी हम लोग स्टेंट्स करवा सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत एडवांसमेंट हुआ है रिसेंट अपकमिंग स्ट्रेटेजीज में। अभी काफी सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स कर सकते हैं। अगर आपके पंपिंग हार्ट की भी कम हो, बहुत वीक हो, तो भी हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं आपको इसके ओवरकम करने के लिए। तो दिस स्ट्रेटेजीज आर डेफिनेटली आर वेरी एडवांस्ड ओवर 10 years, एंड दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग, सो दैट ये आपको इसके रिगार्डिंग ऐसे अभी केसेस हम लोग कर सकते हैं जो पहले हम लोग नहीं कर पाते थे। तो that's what the recent advances have definitely upcome, and definitely it helps you to have a longer interventional outcomes। जो आपके outcomes है बहुत ज्यादा दिन तक बहुत अच्छे, बार बार आपको ये सर्जरीज नहीं करवानी पड़ सकती है। थैंक यू डॉक्टर। तो हम समझ पा रहे हैं कि बहुत कुछ इवॉल्व हुआ है जिसके वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल गई है। जो पहले मुश्किल हुआ करती थी वो चीज़ अब थोड़ी सिंपलर हो गई है, इसीलिए मेडिकल में काफ़ी एडवांसमेंट आया है। लेकिन इसके साथ ये प्रश्न भी आता है डॉक्टर, जो शायद हमारे व्यूअर्स को भी हो रहा होगा, कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। एडवांसमेंट तो हो गया, लेकिन एडवांसमेंट के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं एंजियोग्राफी में? ओके, तो दो चीजें हैं। एक तो एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी मतलब जो टेस्ट है, जो टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं आपकी हार्ट की नसों की जांच करवाने के लिए,
ये टेस्ट के बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं आगे क्या करना है। तो एंजियोग्राफी जो टेस्ट है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लेस, इट इज नॉट वेरी वेरी लेस, मतलब माने लेस देन 1% बोल सकते हैं इसको। जैसे आपको लोकल पेन हो सकता है साइड पे, लोकल ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो हम डाई इंजेक्ट करते हैं वो डाई किडनी के थ्रू निकल सकती है, अगर आपको किडनी के इश्यूज है तो वो डाई किडनी से निकल नहीं सकते, बाहर नहीं निकल, किडनी के इश्यूज बढ़ सकते हैं। कभी कभी डाई रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक डाई देने के बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन आ सकती है। तो ये सब इसके किसी किसी पेशेंट्स को स्ट्रोक भी आते हैं आफ्टर एंजियोग्राफी, बट दिस रिस्क का वेरी वेरी लेस, मतलब लेस देन 1%। और ये डेफिनेटली 99% आपको हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखना है, इसमें आपका फायदा ही है। एंजियोग्राफी आपको गोल्ड स्टैंडर्ड है, और आपको गोल्ड स्टैंडर्ड आपको ट्रीटमेंट में जरूर हेल्प करती है, आपको जो दिक्कतें हो रही हैं आपको उसको सॉल्व करने के लिए, और फ्यूचर जो कॉम्प्लिकेशंस आपको फ्यूचर में जो दिक्कतें आ सकती हैं वो जरूर प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करती है। तो डेफिनेटली इट इज ऑलवेज अ बेनिफिशियल थिंग ओवर रिस्क, बट बिकॉज इट इज अ इन्वेसिव प्रोसीजर, रिस्क तो इसमें रहता ही है। थैंक यू डॉक्टर। सो हम समझ पा रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन भले जो थोड़ा 1% भी है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से डर के हमें अगर एंजियोग्राफी हम करवाए ही नहीं, तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेटर कॉम्प्लिकेशन, दैट इज अ ग्रेटर प्रॉब्लम दैट कैन अकर इन आवर बॉडी। सो आई थिंक ऑल आवर व्यूअर्स, इफ यू आर डाउटफुल कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सो जैसे डॉक्टर ने बहुत सही तरीके से बताया कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए इससे डरने की जरूरत हमें कम है। So doctor, moving towards the third question, angiography techniques, if you can just share about the little angiography techniques that usually follow. ओके, सो डिफरेंट एंजियोग्राफिक टेक्निक्स में अभी जैसे रेडियल अप्रोच और फीमोरल अप्रोच। रेडियल मतलब हाथ की नस से की जाने वाली प्रोसीजर, और फीमोरल अप्रोच मतलब पैर की नस से की जाने वाली प्रोसीजर। तो रेडियल अप्रोच और फीमोरल अप्रोच ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन से अप्रोच से करना है। वो आपके एनाटॉमिकल इस पे और आपके कोमॉर्बिडिटीज और ये सब एक रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो इवैल्यूएट करके फिर डिसाइड करते हैं कि रेडियल करना है या फीमोरल करना है। यूजुअली रेडियल अप्रोच इज ऑलवेज बेटर, पेशेंट्स बिकम मोर अर्ली मोबिलाइज्ड, लेस कॉम्प्लिकेशंस, लेस लोकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। डेफिनेटली फीमोरल अप्रोच आल्सो हैज इट एडवांटेजेस। फीमोरल अप्रोच में एडवांटेज ये रहता है कि आपका हार्डवेयर ज्यादा यूज कर सकते हैं, हायर साइज की जो कोरोनरी ट्यूब्स होती हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं फीमोरल से। रेडियल की उतनी लिमिटेशन है कि वो एक साइज के ऊपर हम लोग उसको नहीं जा सकते। Definitely it depends on risk versus, but definitely radial has a better advantage for angiography. Angiography के लिए radial is always better, early discharge, early ambulation, and early आपको complications also very less. Thank you, doctor. So as we know, angiography is a diagnostic process. If we move ahead, let us talk about angioplasty as a treatment. So doctor, what is angioplasty and how difficult is that procedure for the human body? Okay. So coming on to angioplasty and how do we tackle it? So angioplasty is just an advancement over angiography. जैसे एंजियोग्राफी आपकी प्रोसीजर जो है वो 15 to 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है प्रोसीजर। इतनी थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है एंजियोप्लास्टी में, 45 मिनट्स to 1 आवर लग सकते हैं। तो एंजियोप्लास्टी उसी तरह से की जाती है जो रेडियल और फीमोरल अप्रोच है। इसमें ये होता है कि हम लोग दूसरी प्रकार की ट्यूब डालते हैं, और ट्यूब के ऊपर हमने एक वायर उस लीजन के अक्रॉस जो आपको दिक्कत दे रही है, जो लीजन बहुत आपको प्रॉब्लमेटिक है, उस लीजन को सॉल्व किए जाने के लिए एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी प्लास्टी मतलब जो लीजन को हम मॉडिफाई करना है, जिस लीजन हमको टैकल करना है उसको जो ट्रीटमेंट करवानी है उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये थेरापेटिक प्रोसीजर है। इसमें हम लोग वो लीजन के अक्रॉस वायर पास करके उसके ऊपर एक बलून से उस जो टफ लीजन है उसको हम लोग प्लास्टिक कर देते हैं। मतलब वॉल को जैसे हम प्लास्टर करते हैं वॉल को, वैसे उसको बलून से प्रेशर से वो लीजन को अक्रॉस द कॉर्नरी वॉल उसको प्लास्टर करते हैं। एक बार वो लीजन बाजू में प्लास्टर हो गया, उसके ऊपर हम लोग स्टेंट ये बिठा देते हैं ताकि वो स्टेंट से आपकी आर्टरी लाइफ लॉन्ग अच्छे से फ्लोइंग रहे, और आर्टरी एक बार एंजियोप्लास्टी हो जाने के बाद आपकी कोरोनरी ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाए, जो आपको दिक्कतें आ रही थी वो आपकी सॉल्व हो जाए। तो एंजियोप्लास्टी इज अ थेरापेटिक प्रोसीजर जो कि एडवांसमेंट है। और एंजियोग्राफी वो उसी तरह से रेडियल और फीमोरल अप्रोच से की जाती है, और आपके कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सा अप्रोच विल बी बेटर।
इट डिपेंड्स ऑन द लीजन मॉर्फोलॉजी, लीजन कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना डिफिकल्ट लीजन है, उसके ऊपर से आपके कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि रेडियल जाना है या फीमोरल अप्रोच करना है। और ये एंजियोप्लास्टी इतना ही नॉट वेरी, क्या बोलते हैं, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, इट इज एडवांसमेंट ओवर एंजियोग्राफी, जिसमें कोई कटिंग या आपको कोई टाका या ऐसा कुछ लगेगा नहीं। इट इज जस्ट लाइक एज सिंपल एज यू डू एंजियोग्राफी। या इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट एनाटॉमिकल क्राइटेरिया, कितने पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज, द डिफिकल्टी ऑफ प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन दैट। तो डिफिकल्टी ऑफ प्रोसीजर विल डिपेंड आपके कितने कोमॉर्बिडिटीज है, आपका लीजन कितना टफ है। और डेफिनेटली अभी के एरा में इतने सारे एडवांसमेंट के बाद डेफिनेटली इट हैज बिकम मच इजियर देन व्हाट इट प्रीवियसली यूज्ड टू बी। सो जैसे आपने डॉक्टर बोला कि इसमें बहुत ज्यादा कटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये भी है कि ब्लड लॉस में बहुत फर्क पड़ता है, जो इंजरी होती है, जो कट होता है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। सो हाउ इज इट हेल्पफुल इन दैट वे? हाउ इज इट, जैसे हम जानते हैं मिनिमली इन्वेजिव भी एक प्रोसीजर है, तो हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर द पेशेंट? ओके, तो जैसे आपके लीजन्स जो आपके ब्लॉकेज है उसको सॉल्व करने के लिए जैसे 3 तरीके मेडिसिन से आप कर सकते हैं। अगर लीजन्स बहुत 70 to 60% है, अगर 70-80% के ऊपर आपके ब्लॉकेजेस है, तो आपके डॉक्टर्स उसको एडवाइस करेंगे आप एंजियोप्लास्टी करो या बाईपास सर्जरी करो। तो कमिंग टू दैट, एंजियोप्लास्टी इज वेरी मिनिमली इन्वेजिव एज कम्पेयर टू बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में आपके सर्जरी होगा, स्टर्नम ओपन करेंगे, तो इट हैज डेफिनेटली, बाईपास सर्जरी हैज इट एडवांटेजेस। वो इट विल बी डिसाइडेड ऑन योर एनाटॉमिकल एंड कोरोनरी, जितने आपके कॉम्प्लेक्स लीजन्स है उसके ऊपर आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि आपको बाईपास सर्जरी करवानी है या एंजियोप्लास्टी करवानी है। बट डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी इज रिकवरी इज अर्लियर, आपके एम्बुलेशन जल्दी हो जाता है, आप डिस्चार्ज जल्दी हो जाते हैं हॉस्पिटल से। इसमें रिस्क तो ऑलमोस्ट इज सेम, बाईपास हैज इट्स ओन रिस्क, एंजियोप्लास्टी हैज इट्स ओन रिस्क, बट डेफिनेटली रिकवरी इज मच बेटर and definitely ease for the mind of both the patients and for the doctors. It is very easy as compared to bypass surgery, but bypass surgery has its own advantages and angioplasty has its own advantages, जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करके ये डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआई के रिस्क क्या होते हैं? या और पीसीआई क्या है? या एंजियोप्लास्टी कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क पीसीआई बोलते हैं इसे। So what is complex high risk PCI? This is a new terminology. इसे शॉर्ट में हम चिप बोलते हैं, चिप केस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क PCI। तो कॉम्प्लेक्स मतलब आपकी जो कोरोनरी जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत टफ है, मतलब जैसे उसमें कैल्शियम जमा हो गया हो, या आपकी आर्टरी बहुत टॉर्चुअस हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी आर्टरी हो हार्ट की, या आपके जो ब्लॉकेज है वो बाइफर्केशन हो, मतलब ये 2 आर्टरी जो निकल रही है एक साथ, वहां पे बाइफर्केशन लीजन बोलते हैं, जिसमें ब्लॉकेजेस काफी सारे एक ही जगह में है, उसको बाइफर्केशन स्टेंटिंग करना पड़ता है। या बोलते हैं सीटीओ, कॉम्प्लेक्स क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन, मतलब बहुत टफ लीजन है, बहुत लंबी समय से ब्लॉकेज है, तो ये कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है। जैसे आपका एलवी फंक्शन, जो हार्ट की पंपिंग है वो कम है, 15% से कम है, तो इसमें डेफिनेटली आपका प्रोसीजर लंबा हो जाता है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग कम है, तो आपको इंप्रूव करवाने के लिए आपको आइनोट्रोप्स यानी हार्ट की पंपिंग बढ़ाने के लिए आपको ड्रग्स डॉक्टर्स ऐड कर सकते हैं। फिर आपको इंट्राकोरोनरी बलून पंप के द्वारा ये आपको पंपिंग में हेल्प कर, ताकि वो प्रोसीजर बहुत सेफली हो जाए। जैसे आपकी पंपिंग कम है तो आपको प्रोसीजर रिस्क डेफिनेटली हाई रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क। फिर हाई रिस्क पे आते हैं, जैसे मान लो आपको कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी का इश्यू है, सीओपीडी मतलब लंग के इश्यू से आपको स्ट्रोक हुआ है पहले, तो ये कोमॉर्बिडिटीज के साथ आपको ऐसा मान लो एलवी फंक्शन कम है और आपके लीजन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो दिस terminologies which is called as complex high risk PCI, definitely it's a advancement over the previous PCI। इसमें आपके हार्डवेयर ज्यादा यूज होंगे, इसमें आपके मटेरियल्स जो प्लास्टिक करते हैं उसमें ज्यादा यूज होंगे। कोरोनरी प्लास्टिक का जो समय है, जो मान लो 30 से 40 मिनट लगता है, वो आपको 1-2 घंटे ज्यादा लग सकता है, इसमें रिस्क आपको ज्यादा होता है। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क पीसीआई, मतलब आपको इसमें थोड़ा रिस्क एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंजियोप्लास्टी ज्यादा होता है। तो ये आपके डॉक्टर्स, और इसमें कॉस्ट ज्यादा होती है, इसमें हार्डवेयर जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी एडवांस यूज करनी पड़ती है, इंट्राकोरोनरी इमेजिंग, मतलब अंदर हमको हार्ट की आर्टरीज को इमेजिंग करना पड़े, या रोटा एब्लेशन जैसे जैसे ड्रिलिंग मशीन आती है उस तरह की एक मशीन आती है जिससे हम लोग वो ब्लॉकेज को निकाल सके।
तो ये कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क पीसीआई एक अलग पीसीआई का प्रकार है, जो एक बहुत ही रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट जो बहुत ही लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें इसको जिनमें इनको बहुत ये है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और इसे डेफिनेटली इसमें आपको रिस्क, मनी, कॉस्ट कंस्ट्रेंट ज़्यादा पड़ जाता है। थैंक यू डॉक्टर। हमने FFR यानी फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व के बारे में सुना है, तो हम चाहते हैं कि आप उस पर भी थोड़ा हमें हेल्प करें, क्या है? सो फ्रेंड्स, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व क्या है? व्हाट इज FFR? ये एक वायर होती है जो प्रेशर मेजर करती है, जो हमारे अंदरूनी प्रेशर्स, मतलब जैसे हम लोग बीपी मापते हैं बीपी मशीन के द्वारा, तो एक अंदरूनी प्रेशर मापने की एक वायर आती है जो आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर मापती है कि आपके कोरोनरी आर्टरी में कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। जैसे आपको मान लो एक ब्लॉकेज है और वो ब्लॉकेज 60 to 70% है और बहुत बॉर्डर लाइन ब्लॉकेज है, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट को ये डिसीजन लेना है कि ये हम लोग इसको ट्रीटमेंट करें नहीं करें, इससे आपको कितनी दिक्कत होगी, फ्यूचर में आपको इसको कितना खतरा रहेगा। तो ये एक वायर होती है जो हम लोग वो लीजन के अक्रॉस पास करते हैं, और ये वायर से वो प्रेशर ड्रॉप, मतलब नॉर्मल बीपी से कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस दैट ब्लॉकेज। अगर ये प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि इसको आप ट्रीटमेंट करा लो, आपको एंजियोप्लास्टी करा लो। बट अगर ये प्रेशर ड्रॉप बहुत कम है और प्रेशर ड्रॉप ज्यादा नहीं है, तो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि आप मेडिकली इसको मैनेज कर सकते हो, आप गोली दवाई से इसको ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो दिस इज अ रिसेंट एडवांसमेंट कि आप ये प्रेशर के द्वारा हर लीजन के द्वारा चेक कर सकते हैं कि इसको आपको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है कि नहीं है। डेफिनेटली आपको इसमें कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, 70 to 80,000 एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, बिकॉज जो हार्डवेयर जो वायर आती है वो थोड़ी डेलिकेट और बहुत कॉस्टली वायर होती है, जिसको हमें अक्रॉस द लीजन चेक करना है प्रेशर ड्रॉप कितना है। बट इसमें स्टडीज की गई है कि जब हम ये वायर यूज करते हैं, जैसे एक स्टडी है फेम 1 और फेम 2, दोनों टाइप की स्टडी है। जब हम ये स्टडीज में देखा गया कि जब ये वायर से यूज करके जब उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें ट्रीटमेंट करवानी है कि नहीं करवानी है, तो इसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। इसमें लॉन्ग टर्म जो पेशेंट से आउटकम्स बहुत अच्छे रहे। जिस लीजन के प्रेशर ड्रॉप कम था, उन पेशेंट्स को जरूरत नहीं पड़ी आगे फ्यूचर में ट्रीटमेंट करवाने की, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रही मेडिसिन के द्वारा। मान लो 70% से ऊपर लीजन था और उसमें बहुत क्रिटिकल लीजन था FFR वायर पे मेजर करने के बाद, तो उन पेशेंट में ट्रीटमेंट करवाने के बाद कॉम्प्लिकेशंस आगे कम हुई, फायदा उनको बहुत ज्यादा हुआ। तो ये एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये मेजर कर लेते हैं कि आपको ये लीजन को ट्रीटमेंट करवाना है कि नहीं करवाना है। मतलब ये आपका स्टेंट आपको करवाने हैं, हमको स्टेंट बिठाना है या बाईपास सर्जरी करवानी है, इस लीजन्स को हम लोग FFR वायर जब मेजर करते हैं तो लॉन्ग टर्म आउटकम्स आर एक्सीलेंट, एंड लॉन्ग टर्म आउटकम्स आपको ज्यादा देर तक बेनिफिट दे देता है। Thank you, doctor. So if I have to sum it up in a few words, it is basically FFR is basically a measuring tool in it's a measuring pressure measuring wire. Yeah. Thank you, doctor. So you mentioned about intracoronary imaging twice during this session. So I'm also interested in knowing and helping our viewers to know what is intracoronary imaging. Okay, so friends, इंट्राकोरोनरी इमेजिंग क्या है? इंट्राकोरोनरी इमेजिंग मतलब किसी चीज को देखना, इमेजिंग मतलब बहुत अच्छी तरह से उस लीजन के बारे में जानकारी लेना। तो इंट्राकोरोनरी इमेजिंग में हम क्या करते हैं, कोरोनरी वायर्स के अंदर एक दो इसमें हम बोल सकते हैं ये इमेजिंग के प्रकार भी होते हैं, जैसे आईवस, यानी जैसे हम अल्ट्रासाउंड इको मशीन से हम कैसे हार्ट को देखते हैं पंपिंग होते हुए, उसमें क्या एब्नॉर्मलिटीज है, तो ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग हार्ट की कोरोनरी वेसल्स में देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोरोनरी आर्टरी कैसी है, कि लीजन कितना क्रिटिकल है, उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब लीजन में कैल्शियम कितना है, लीजन में थ्रोम्बस यानी क्लॉट है, लीजन में कितना क्रिटिकलिटी है, कितना डाइसेक्शन है, ये डिसाइड करके हम स्टेंट की एक्यूरेट डायमेंशन, मतलब स्टेंट हमें कितने साइज का लेना है। और स्टेंटिंग करवाने के बाद जब हम इमेजिंग करते हैं, स्टेंटिंग करवाने के बाद वो स्टेंट ठीक से बैठा है या नहीं, ठीक से आर्टरी को प्लास्टर हुआ है या नहीं, और स्टेंट कोई डाइसेक्शंस कोई हुए हैं कि नहीं, जिससे हमें स्टेंट बहुत अच्छी तरह से, मतलब ये आइडिया मिल जाता है कि अंदर स्टेंटिंग बहुत अच्छी तरह से हुई है। तो ये एडवांसमेंट है पहले के एंजियोप्लास्टी के ऊपर। जब हम इंट्राकोरोनरी इमेजिंग यूज करते हैं तो स्टेंट आउटकम्स और आपके जो लाइफ आउटकम्स है बहुत बढ़िया रहते हैं। ये डेफिनेटली आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, आपको 1 लाख एक्स्ट्रा इसका पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम एंजियोप्लास्टी,
बट ये आपको रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छे देगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत ब्यूटीफुल देगा। इंट्राकोरोनरी इमेजिंग में दो टाइप्स होते हैं, एक जैसे मैंने बताया अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और एक ओसीटी मशीन होती है जो बोलती है लाइट के द्वारा हम देखते हैं कि हार्ट की आर्टरी कैसी है, और हार्ट की आर्टरी के स्टेंट करवाने के बाद आर्टरी कैसी है। तो इसमें हमें ये कॉम्प्लेक्स लीजन्स में इसका ये फायदा होता है कि हमें ये श्योरिटी मिल जाती है एक लाइफ लॉन्ग के लिए कि हमारा स्टेंट बहुत अच्छे से बैठा है, स्टेंट की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। एंड डेफिनेटली अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रिजल्ट से कंपेयर किया है उन्होंने स्टडीज में, तो फाइंड आउट किया कि जब इंट्राकोरोनरी इमेजिंग करके जब स्टेंट के रिजल्ट दिए गए तो बहुत बढ़िया थे एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंजियोप्लास्टी। आपकी लाइफ और स्टेंट की लाइफ बहुत ज्यादा लंबे समय तक चल पाई, और इंट्राकोरोनरी इमेजिंग का ये एडवांटेज रहा कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गए। जो नॉर्मल एंजियोप्लास्टी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डेफिनेटली बहुत रिड्यूस हो गए आफ्टर यूजिंग इंट्राकोरोनरी इमेजिंग। तो इंट्राकोरोनरी इमेजिंग इज अ गुड एडवांसमेंट ओवर द प्रीवियस एंजियोप्लास्टी। एक तो कॉम्प्लिकेशंस लेस हो जाते हैं, आपकी लाइफ स्टेंट की बहुत बढ़ जाती है, आपको रिकरेंट हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं होते, और एक आइडिया मिल जाती है कि आपका स्टेंट बहुत अच्छे से बैठ गया और आपको इसकी स्टेंट की लाइफ अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इंट्राकोरोनरी इमेजिंग क्या है, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को इसका कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल गया है। सो अब सबको जब समझ आ ही गया है तो क्वेश्चंस भी कुछ होंगे। सो आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर व्यूअर्स जो उन्होंने पूछे हैं आज। मिस्टर हर्ष हर्ष भावसार हैं, वो कहते हैं हेलो डॉक्टर, कैन वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एंजियोग्राफी प्रोसीजर, ऑल्सो इफ देयर इज रिकवरी विंडो टू कीप इन माइंड आफ्टर द प्रोसीजर। सो इसका ड्यूरेशन डॉक्टर क्या रहता है और उसका रिकवरी विंडो क्या रहेगा, दिमाग में हमें क्या रखना चाहिए, ये हर्ष पूछ रहे हैं। Okay, Mr. Harsh, so very good question. So duration of angiography procedure usually it is around 15 to 30 minutes. ये प्रोसीजर 15 से 30 मिनट में इजीली हो जाती है। यूजुअली बहुत इजीली ये प्रोसीजर हो जाती है विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। रिकवरी विंडो आफ्टर द प्रोसीजर, जैसे आपकी एंजियोग्राफी हो जाए और अगर आपको मान लो इसमें एंजियोग्राफी के बाद आपको डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आपको बाद में इसके ट्रीटमेंट समझाएंगे। अगर मान लो ब्लॉकेज बहुत क्रिटिकल है तो आपको एडवाइस करेंगे एंजियोप्लास्टी करवानी है, बाईपास करवानी है, या तो मान लो कोई ब्लॉकेज नहीं है तो आपको एडवाइस करेंगे आप मेडिकल मैनेजमेंट करो, या बहुत लेस ब्लॉकेज है 50 to 60% ब्लॉकेज है तो आपके मेडिसिन को स्टेप अप करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट पे आपको रखेंगे। इसके बाद एक बार एंजियोग्राफी हो जाए तो उसके बाद डिसीजंस काफी बार ऐसे हो जाते हैं कि अगर क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप एंजियोप्लास्टी भी इसी सिटिंग में करवा लो, ताकि दोबारा आपको इससे जाना ना पड़े, दोबारा आपको पंक्चर ना करना पड़े। तो हो सकता है आपके डॉक्टर बोल सके कि इसी सेटिंग में आप इसी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर को करवा लो, तो आपकी प्रोसीजर अराउंड 30-45 मिनट्स बढ़ जाएगी। इसके बाद रिकवरी आपको यूजुअली एंजियोग्राफी में अगर रेडियल अप्रोच से की जाती है तो 4 से 5 घंटे रिकवरी में लगते हैं, और आफ्टर फीमोरल अप्रोच आपको 7 से 8 घंटे रिकवरी में रखा जाता है, ताकि ये जो लोकल कॉम्प्लिकेशंस हो वो ना हो, उसको मॉनिटर करने के लिए इसे किया जाता है। डेफिनेटली इसके बाद आपका अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो उसी दिन आपके डॉक्टर सेम डे आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आई होप मिस्टर हर्ष आपको आपका आंसर मिल गया। मिस्टर विपिन गुराना है हमारे साथ, वो पूछते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंजियोग्राफी। ओके, सो मिस्टर विपिन, जैसे मैंने बताया एंजियोग्राफी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। एक गोल्ड स्टैंडर्ड माने जिसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहता कि हमें क्या करवाना है। जैसे अभी टीएमटी टेस्ट है, टीएमटी टेस्ट में आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको ब्लॉकेज है या नहीं है, बट एंजियोग्राफी में वो कंफर्म हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि अंदर आपको ब्लॉकेजेस कितने क्रिटिकल है, कितने परसेंट है, और ये एंजियोग्राफी करवाने के बाद आपके डॉक्टर्स आपको इसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। मान लो ये ब्लॉकेज 60% से कम है तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट एडवाइस करेंगे। अगर बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीजन, कोमॉर्बिडिटीज ऑफ द पेशेंट और कितना आपको दिक्कत हुआ आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। तो ये बेनिफिट आपको लाइफ आपकी सेट आपकी एक हो जाती है कि एंजियोग्राफी करवाने के बाद आपके माइंड में एक श्योरिटी हो जाती है कि आपको कितने क्रिटिकल ब्लॉकेज है और हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना है, ट्रीटमेंट करवाने के क्या ऑप्शंस हैं, आपको ट्रीटमेंट में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ट्रीटमेंट में आपको इसका कितना फायदा होगा, लॉन्ग टर्म इसके आपके आउटकम्स क्या रहेंगे, ये डेफिनेटली आपको एंजियोग्राफी से अच्छा और कोई टेस्ट नहीं दे सकता है। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर विपिन, हम उम्मीद करते हैं आपको आपका आंसर मिल गया है। जानवी जी पूछते हैं एंजियोग्राफी टेस्ट पेनफुल होता है, दर्द एंजियोग्राफी में? ओके, तो एंजियोग्राफी टेस्ट पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। इसे एंजियोग्राफी में लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है,
आपके डॉक्टर्स बहुत अच्छे से लोकल एनेस्थीसिया देंगे वहाँ पर, और ये लोकल एनेस्थीसिया में आप टेस्ट करते समय आपको ज़रा भी पेन नहीं होगा। ड्यूरिंग आफ्टर पोस्ट इंटरवेंशन माइल्ड पेन रह सकता है 1-2 दिन के लिए, जो कि लोकल माइल्ड पेन किलर से मैनेज हो जाता है। काफ़ी बार रेडियल आर्टरी करते समय स्पाज़म हो जाती है, जिससे पेन थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए रह सकता है, बट ये बिल्कुल भी ज़्यादा पेनफुल नहीं है, बहुत ही लेस पेनफुल टेस्ट है, और लोकल एनेस्थीसिया में इसको आपको पेन फील नहीं होगा। आपको जो कैथेटर्स वगैरह फील हो सकते हैं, बट पेन नहीं होगा। सो और एक इन्फॉर्मेशन हमें ये भी मिली है कि पेनफुल नहीं है एंजियोग्राफी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मिस्टर जयमिन है हमारे साथ, वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ एंजियोग्राफी। ओके, सो जैसे मैंने बताया, रिस्क ऑफ एंजियोग्राफी इज डेफिनेटली आपके डॉक्टर्स आपके बेनिफिट वर्सेस रिस्क रेशियो इवैल्यूएट करने के बाद ही आपको एंजियोग्राफी सजेस्ट करेंगे। इसके कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कि ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि ये नहीं करवानी चाहिए। टेम्पररी या आप बोल सकते हैं टाइम बिंग के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, जो कि वो सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आप एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। मान लो किसी पेशेंट को किडनी के इश्यूज है, तो हो सकता है उस समय एंजियोग्राफी ना कर पाए, बट एक बार किडनी के इश्यूज सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आप एंजियोग्राफी डेफिनेटली आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। कुछ टेम्पररी रीजंस की वजह से काफी बार एंजियोग्राफी आपकी नहीं हो सकती है, बट डेफिनेटली एक बार वो इश्यू सॉल्व हो जाए तो आप एंजियोग्राफी करवा ही सकते हैं। एंजियोग्राफी के लिए कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अब इसमें रिस्क क्या आते हैं? रिस्क ये बहुत कम है, बहुत ही मिनिमल बोल सकते हो आप। 99% तो इसका आपका फायदा ही है, 99% ही आपको फायदेमंद ही रहेगा। आपको अगर बहुत दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होती है चलने फिरने में, तो ये आपके लिए जरूर फायदेमंद है। बट ये आपके कार्डियोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे कि इसका रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखने के बाद ही कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि आपको एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत है या नहीं। यूजुअली अगर आपको बहुत क्रिटिकल आपके डॉक्टर समझते हैं कि आपको इसकी जरूरत है, तो ही वो आपको एडवाइस करते हैं। अब इसमें रिस्क आते हैं, लोकल आपको पेन रह सकता है 1-2 दिन के लिए, आपको कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड डाई रिलेटेड रिएक्शन हो सकती है, आपको डाई रिलेटेड किडनी इंजुरी, मतलब CIN बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, मतलब किडनी में प्रॉब्लम हो जाना आफ्टर कॉन्ट्रास्ट। काफी पेशेंट्स को स्ट्रोक भी आ सकते हैं आफ्टर एंजियोग्राफी, बट बहुत मिनिमल, एकदम 0.01% से भी लेस रिस्क है। और काफी बार ब्लीडिंग इश्यूज, लोकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हीमेटोमा हो सकता है, तो ये सब इसके रिस्क रहते हैं। बट ये मिनिमल, बहुत मिनिमल है एज कंपेयर, बहुत मिनिमल है इसके रिस्क, बट इसका डेफिनेटली एडवांटेज आपको डिसीजन मेकिंग, आपको फ्यूचर में आपके कितना इसको आपको फायदा मिलेगा, ये डेफिनेटली आपको डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर जयमिन, हम उम्मीद करते हैं आपको आपका आंसर मिला है। मिस भावना हमारे साथ हैं, वो पूछ रहे हैं what complications are there when a patient has 100% blocked artery, and I want to know whether 100% blockage can be removed by angioplasty, or do that person have to undergo a bypass surgery? ओके, सो 100% ब्लॉक आर्टरी माने वो आर्टरी का जो ब्लड सप्लाई है हार्ट के लिए वो बंद हो गया, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं हार्ट अटैक आना, यानी इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ST एलिवेशन MI, या जनरल टर्म में बोलते हैं हार्ट अटैक। इस वक्त आपके पास कोई सोचने का समय नहीं होता, इसको आपको एक कैथ लैब में जाके एंजियोग्राफी करवाना 100% है। इसका मतलब आपको अटैक आया तो ये आर्टरी को हमें खोलना बहुत जरूरी है, ताकि ब्लड फ्लो फिर से एस्टेब्लिश हो जाए। और जो भी डैमेज हुआ है, बिकॉज ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को नहीं गया, जैसे आपका हार्ट इज अ पंप जो पूरे शरीर को ब्लड देता है, किडनीज, ब्रेन, लिवर, अगर ये हार्ट को ही ब्लड नहीं मिला तो वो पंप नहीं कर पाएगा पूरे शरीर में। तो इट इज डेफिनेटली अ विशियस साइकिल। अगर इस 100% ब्लॉक आर्टरी को अगर खोला नहीं गया तो डेफिनेटली आपको एक विशियस साइकिल में ले जाती है। जब तक ये आर्टरी नहीं खुलती आप स्टेबलाइज नहीं होगे, आपका जो स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये 100% ब्लॉक आर्टरी के यूजुअली एंजियोप्लास्टी से ही खोला जाता है, बिकॉज क्रिटिकल समय में बाईपास सर्जरी करना वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें प्लान करना पड़ता है। एंजियोप्लास्टी में आपको तुरंत एक कैथ लैब में ले जाएगा और जो 100% ब्लॉक आर्टरी है उसे आपके कार्डियोलॉजिस्ट खोलने को ट्राई करेंगे। वो 100% ब्लॉक आर्टरी कितनी क्रिटिकल है, कितनी सीवियर है, वो एंजियोग्राफी करने के बाद आपके कार्डियोलॉजिस्ट देख लेते हैं। अगर 100% आर्टरी में बहुत ज्यादा थ्रोम्बस है, मतलब थ्रोम्बस बर्डन बहुत ज्यादा है, तो काफी बार आपके कार्डियोलॉजिस्ट एक थ्रोम्बस सक्शन कैथेटर, जिससे हम थ्रोम्बस को खींच के निकाल सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब थ्रोम्बस बर्डन ज्यादा होता है तो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा ही होते हैं। तो जब थ्रोम्बस बर्डन काफी, जैसे मान लो आपको अटैक आया और आपको आने में डिले हो गया हो, काफी लंबा समय लग गया हो, तो ये ब्लॉकेज डेफिनेटली बहुत ज्यादा सीवियरिटी का होता है और काफी बार ये खुल नहीं सकता अगर बहुत समय इसको ज्यादा देर से ये रहा हो।
और हो सकता है ये आपको डेथ भी लीड कर सकता है, आपके सडन हार्ट डेथ हो सकती है अगर आपको डिले हो जाए आने में। तो ये 100% ब्लॉक आर्टरी में तो कोई आपको सोचना ही नहीं है, इसमें आपको आर्टरी को वो खोल के आपको ब्लड फ्लो एस्टेब्लिश करना है। अगर एंजियोप्लास्टी आप कोई पेरिफेरल सेंटर में हो, कोई एंजियोप्लास्टी सेंटर नहीं हो, तो वहाँ पे आपके डॉक्टर्स एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, मतलब जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला एक दवाई देकर उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर वो आपको यहाँ पर टर्शरी, अगर आप बहुत पेरिफेरी में रहते हो तो यूजुअली ये ब्लड लाइसिस से दवाई के द्वारा करने की ट्राई करते हैं। बट ब्लड लाइसिस करने के बाद भी रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि आपको कितना डिले हुआ आने के लिए। तो एंजियोप्लास्टी तो 100% ब्लॉक आर्टरी को करवाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और ये करना ज़रूरी है ताकि आपकी आप इससे हार्ट अटैक से बच सकें। थैंक यू डॉक्टर। मिस भावना, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला है। मिस्टर हर्ष भावसर हमारे साथ हैं। पूछे, इज congenital bicuspid valve any reason to worry? Also, what effect does a bicuspid valve have on the body compared to someone with a regular heart? ओके, सो कंजेनिटल बाइकस्पिड वॉल मतलब, बाइकस्पिड वॉल माने क्या, आपके हार्ट के वॉल जो होते हैं वो 3 होते हैं, आपके आवर्टा में 3 वॉल होते हैं। अगर वो 2 ही रहे जन्मजात, ये कंजेनिटल इश्यू है, मतलब जन्मजात आपके हार्ट में 2 वॉल हैं, तो ये आपको आगे चल के दिक्कत दे सकते हैं। इसे अर्ली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। रीजन टू वरी तो ये है कि आपको ये फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम दे सकता है। काफ़ी पेशेंट्स को ये बाइकस्पिड वॉल अगर बचपन में ही सीवियर भी हो सकता है, तो उस वक्त ये बाइकस्पिड वॉल को हमें खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है वाया सेम एज एंजियोप्लास्टी। काफ़ी बार बलून से इसको खोलने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बाइकस्पिड वॉल, इसकी दिक्कत यूजुअली आफ्टर 40 टू 50 ईयर्स में आती है, बिकॉज ये नॉर्मल वॉल नहीं है। आपके वॉल में नॉर्मल 3 वॉल होते हैं, अगर ये 2 वॉल हैं तो ये वॉल नॉर्मल नहीं है। ये वॉल डेफिनेटली आगे जाके इसके बंद होने के चांसेस रहता है। तो आपको रेगुलर फॉलोअप पे रहना है, रेगुलर इसको इको करवाना है एवरी ईयरली, और उस वॉल के आकाश कोई स्टीनोसिस तो नहीं हो रहा, वॉल बंद तो नहीं हो रहा, ये आपको चेक करवाते रहना है। बिकॉज इट इज अ कंजेनिटल प्रॉब्लम, सो इसके लिए काफी बार रिप्लेसमेंट, मतलब वो वॉल निकाल के आपके डॉक्टर्स एक मेटालिक वॉल आपको फ्यूचर में, जैसे 50-60 ईयर्स के बाद, ये लॉन्ग टर्म में नॉर्मल वॉल के कंपेयर में ये जल्दी ब्लॉक हो जाता है, जल्दी स्टीनोसिस इसमें डेवलप हो जाता है। काफी बार इसमें वॉल में लीकेज भी डेवलप हो जाता है, और इसके साथ एक एनोमली होती है कोआक्टेशन ऑफ आवर्टा, जो आपके आवर्टा में थिकनिंग आ जाती है। तो ये सब इसके प्रॉब्लम्स, आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है। डेफिनेटली इट इज नॉट नॉर्मल, आपके नॉर्मल वॉल्स के जैसा तो नहीं है, तो इसको आपको फॉलोअप में रह के रेगुलर रहना है। काफी बार ये सब में नहीं दिक्कत करता, बट जिसमें दिक्कत करता है उनमें ट्रीटमेंट की जरूरत जरूर पड़ती है। Thank you, doctor. So I think we have come to the end of the audience questions. So viewers के questions अभी हैं नहीं, आपने सब आंसर दिए। तो हर्ष भावसर कह रहे हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो थैंक यू डॉक्टर। फ्रॉम ऑल्सो आवर व्यूअर्स वांट टू थैंक यू। इट हैज बीन रियली अ वंडरफुल सेशन डॉक्टर। बहुत डिटेल में और इम्पोर्टेंटली बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने हम सबको ये समझाया कि जो भी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में, बहुत सरल भाषा में आपने समझाया ताकि हम सबको ये समझ आ जाए। आपने बहुत समय दिया हमें, इसके लिए भी हम थैंक यू बोलते हैं। और हम हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं कि आपको कभी भी बिल्कुल सी भी एक संकोच हो, कुछ भी ऐसा साइन दिखे कि आपको जैसे डॉक्टर ने बताया कि चलने फिरने के टाइम पे मुश्किल हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, या थोड़ी सी भी अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप प्लीज जाके चेक कराइए। गुजरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इन सब चीज़ों का प्रावधान है जो डॉक्टर ने बताया। डिले हमें नहीं करना चाहिए इतने सीरियस इशू को लेकर। सो डॉक्टर, एनी फाइनल वर्ड्स दैट यू वुड वांट टू स्पीक टू आवर व्यूअर्स? कुछ फाइनल चीजें? ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और डेफिनेटली विद द रिसेंट एडवांसेस दैट हैव कम अप, वी कैन डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड ट्रीटमेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट आपको ये बार बार इसकी दिक्कत ना हो, और आपको बहुत अच्छा लाइफ लॉन्ग के लिए रिजल्ट अच्छा मिल जाए। और डेफिनेटली आप इसे डरिए नहीं, इसे अप्रोच करिए। पहले तो आप इसे एक्सेप्ट करिए कि अगर प्रॉब्लम है तो ये आप एक्सेप्ट करिए, और डरिए नहीं, आगे आके अप्रोच करिए। इसमें हम लोग आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। होप ये आपका सेशन आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा हो, और अभी इतनी एडवांसमेंट आ गई है एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी में कि आपको कम से कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आपकी कोरोनरी ब्लॉकेजेस बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकती है।
और लॉन्ग टर्म में आपको इसका डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर। मैं अपने व्यूअर्स को भी थैंक करना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम अगली बार और एक नया टॉपिक लेकर, एक मेडिकल टॉपिक लेकर आपके साथ आएंगे, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू व्यूअर्स।